Okay. So good evening, Sanat. Can you hear me? Yes, sir. What is your title and how much work you have done? Sir, not started yet, but I am thinking for the title is sales and distribution. Not started yet. And when I mean like when are you going to start? Sir, means In one day. I have given the report to the sir, my manager, means that while intensive. So I'm just going to add some points to that. You just said that you have not done anything. You have not started it, and how you are now Means you are for saying that. no, sir, I am saying that for the college purpose, I have not started, but I have given the report to my SAP while internship I am doing Okay. इंडियन इंटर्नशिप के टाइम वो सर को दिया था ना, तो वो सारे रिपोर्ट है मेरे पास. Okay. So you are done with your company report, right? How many pages you have submitted to the company? 7. 7 pages. What is the title of your project? सर टाइटल मीन्स आपको ऑप्शन दे रहा था ना कि मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं था, तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि मेरा वही था, काम ही उतना था. क्या करना था? सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन. Sales and distribution is your title, right? Have you attended any of my previous session? I mean, like yesterday or the one that I have taken in beginning? उतना time नहीं होगा, right? Okay. Have you talked to any faculty regarding your project? किसी से बात किया है? नहीं, वो सर कल ही बात हुआ था, मतलब सेशन में था ना. So, are you participating in placement? Yes, sir, I am doing. And how can you participate in placement without finalizing your title? I mean, like they have asked you to put your title and objectives on your CV, right? So what is title and objective? काम के सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन बस वो डाला है मैंने. Is that a title? Sales and distribution is a title. Sales and distribution is a concept from marketing book. Sales and distribution of what? Aeroplane, Boeing, submarines. Sales and distribution of product, that is mutual fund distribution. So why did not you mention all these things in your title there when you put that on your CV? मेंशन किया, वहाँ पे मेंशन किया. So why are you telling me that half thing then? If I am asking you title, tell me the entire thing, na? And if the examiner asks you what is the title of your project, you are going to tell them sales and distribution. Is it that case? Sales and distribution of mutual fund. Sales and distribution of mutual fund. Okay. फाइन. आई लिटरली एक्चुअली अगर आप लोग सिंसियरली और सीरियसली नहीं लेना चाहते तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है. फेस तो आपको करना है, राइट? माय जॉब इज टू आंसर इफ यू आस्क फ्यू क्वेश्चंस. इफ यू डू नॉट आस्क देन आई कैन नॉट. सर ये गलत हो जाएगा क्या, मतलब नाउ दिस इज नॉट अ टाइम टू डिस्कस अबाउट योर टाइटल, बिकॉज discussing about your title before 3-4 days of the deadline is, I think, something not going to help you. Now you think think on that particular thing. Yesterday I have given a session on that, how to select a title and how to mention your title. You can talk to your friends, they will give you some idea about that. Okay. Anybody else who has not been there yesterday and joined today? I think Tazin thi, Rushikesh Naik. You were there yesterday? No, sir.
No. What is your title? Sir, study of B2B sales and business development. Okay. In which company you have done your project? Sir, actually, it's Digibolt Incorporation. It was a startup. It is a startup right now. Hmm. Okay. Yes, sir. And with whom you have finalized your title? I mean, like, who was there with you from a faculty? Who was assigned you for guiding that particular SIP? Sir, actually, you was my you only was my guide. But due to some reasons, the company which I got during my internship, I got debarred. I got terminated from that company, and afterwards, I was doing my internship in other company, so I wasn't able to attend college and all that, sir. Okay. Okay. Yeah, sir. So after that, means like past few weeks ago, I talked with Deep sir, and I asked him that can I take this topic, and he was like, you can take it. So that's the thing. So what is the title you said? It's a study of B2B sales strategy for business development. Why don't you put your company name at karke? At the end, just add at XYZ company. Okay, I can do that also, sir. Okay. Because that will give you a little bit focused view, right? Fine. How much work you have done? Like not much, but I have collected like the data of all the services we were giving to the customer, and I was also working there as a BDM, so I have that what are the teachings, like how we train new interns and everything that I have collected till now. Okay, fine. So like I have all the raw data, I just have to like assign it and sort it. That's it. You have to put that into a given format, right? You all have been given Yes, a sir. format. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Divya, what is the status? Yes, sir. So I couldn't join yesterday, but the title of my project is the study of marketing CRM email research. Mm-hmm. Okay. Yeah, so I worked in ZocDoc. It's a company here in Pune itself. Mm-hmm. And so my role was to like find out emails, do research for the marketing team. So the problem is that it is the data. I don't have the data with me. It's with the company and I can't ask for the data now. So I don't have any sort of data to put in the project. Why can't you ask for the data now? The thing is, I was actually worked for 3 months. The contract was for 3 months, and I did an additional half a month before the second semester started. So like I had to leave midway. So they like removed me from everything. I got my certificate for 3 months completion, but I did like an additional half a month just to continue. But I had to leave midway because exams. So they removed me from all sort of access that they'd given me for the data. So you only have your certificate with you, right? Yeah. Okay, design some title around that and design some process of what you are doing in the company, right? Okay. Just mention a flowchart of the activities that you are doing in the company and conclude with some case studies. I mean, like take some dummy emails or dummy data, repeat the same work that you were doing for company at your own. जो कंपनी के लिए करते थे वही अभी किसी सैंपल ट्रायल स्टडीज पे करो, ट्रायल ईमेल पे करो और उसका प्रोसेस मेंशन करके आउटकम निकालो. Okay, are you getting my point? Yes, Rushikesh? Any random names? Sorry. Hi, just take a trial dummy things now. Take dummy emails and I don't know actually what you are doing by taking emails, but replicate the things at your own now. If company is not able to provide you data, then just do it in a case study fashion, right? Take certain cases and repeat that and mention entire process. Yesterday I have explained how the introduction chapter, how the pages could be filled in your summer internship. Yesterday I have also mentioned how you can talk about title and objectives. Probably you can talk to your friends and they will guide you better on that.
today I don't want to waste time on that particular aspect of selection of title and objective. Today I want to take you to the formatting of project. Yes, Rushikesh. Okay. Thank you, sir. Sir, actually, even I don't have any data. Like we used to work on customer basis. If Like you we do not directly have provide data, customers. if you do not have data, I cannot help you, because that is not something that I can suggest you take a data from here and there. Now it is your job how to manage data, because No, things sir. are all... Actually, the thing is like, sir, we directly deal with the customer now. So we provide them services like Google page So- optimization. So there is no data, sir, actually. No, there is always a data, but you people do not keep record of your activities done into summer internship. If you are working in digital marketing, you are working on page optimization. You must have had a screenshots before page visits, after page visits, graphs, analytics, everything was there on the platform that you are working, right? No, actually, sir, we used to give them like the businesses don't have their Google page and all that. Now, so we used to create that, and So we used that's to what. like sell the service. So that's what. Whatever Google pages, whatever things you have done, it had the analytics part. Okay. वो वहां था. Okay. Okay. उस टाइम पे तुमने सोचा नहीं कि SIP करना है, मतलब क्या करना है. That time you only have नहीं thought sir, that. वो I'm not talking about you only. Don't take it personally. Okay. I'm talking in a general aspect. जब लोग कंपनी में SIP पे जाते हैं तो तब सिर्फ यही सोचते हैं कि कंपनी का काम क्या करना है. You never had gave a thought that how you are going to put this into a SIP report and how you people are going to fulfill your academic requirements. Okay. Right? So We sir, have... currently I have all the list of my customers, so I can use that, na? You can use that. You can search. You can search for their pages, their page analytics, or else you can ask few customers to log in into their accounts and send you the analytical reports, right? उसके जो reports आते हैं page analytics के, Yes, whatever, yes, statistics के reports, yes, जो भी नंबर से 4-5 लोगों के कस्टमर्स के रिपोर्ट्स ले लो, उसको प्रोजेक्ट में डालो, उसका प्री पोस्ट एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन लिखो, you will get few findings. That can be done. Okay, sir. Unfortunately, most of the students don't care about how they are going to write a report after completion of your SIP. SIP मिलने के बाद हम बहुत खुश हो जाते हैं, कंपनी में चले जाते हैं. 2 महीने कंपनी में जाने के बाद हमको लगता है अभी मैनेजर बन गए हैं, तो हम कंपनी का काम करने में ही सब टाइम वेस्ट करते हैं. बट 2 रिक्वायरमेंट्स होती है. अगर किसी ने मेरा BRM का क्लास अटेंड किया है सेमेस्टर 1 में, so I have already told you in the class that there are always 2 dimensions of your summer report. One is fulfilling company requirements. You are going into company, so you have to work for company. But another thing, by the time you are working for company, you should not forget that you are required to complete your SIP academic requirement in terms of report as well. So उसी टाइम थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि मेरा टाइटल क्या होगा, मुझे करना क्या है. I mean like करना क्या है मतलब मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, और वो थॉट प्रोसेस होने के बाद आपको पता होना चाहिए कि ये थॉट प्रोसेस पूरा करने के लिए मुझे क्या क्या डेटा रखना चाहिए. तो ये सब बिगिनिंग की बातें हैं. अब नहीं है तो नाउ जस्ट ट्राई टू मेक इट एज अ केस स्टडी. सैंपल ले लो, पूरा डेटा नहीं है तो भी चलेगा. 2, 3, 4, 5 कस्टमर्स का डेटा, या 2, 3, 4, 5 लोगों के इंटरव्यूज का डेटा, या 5-6 ईमेल्स का डेटा, जो भी फील्ड में आपने काम किया है उस टाइप का डेटा. Some of you might have worked for like channel management, distribution channel management. Yesterday we were talking about some case studies of FMCG. Somebody was talking about confectionery, somebody was talking about selling cycles. तो उस टाइम पे अब डेटा कहाँ से आएगा? सेल्स का जॉब किया है, डेटा आना है, तो उसी टाइम क्वेश्चनर डिजाइन करना चाहिए था उन लोगों के साथ बात करने के लिए, और स्ट्रक्चर्ड फ्रेम में डेटा लेके रखना चाहिए था, सो दैट उसका एनालिसिस करने के बाद आपको पता चलता था कि आपके रिटेलर्स आपके साइकिल के बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके रिटेलर्स कॉन्फेक्शनरी के बारे में क्या सोच रहे हैं, कॉन्फेक्शनरी कौन सा कितना सेल करते हैं, कॉन्फेक्शनरी के भी आइटम्स होते हैं, ये आइटम कितना सेल होता है 4 रिटेलर्स का, तो उसका डेटा कलेक्ट करने की सोच आपको पहले रखनी चाहिए थी. अब अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है, फिर भी मैंने कल इन सब लोगों को सॉल्यूशंस दिए हैं. अभी थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, फोकस ऑन अ प्रोसेस ओरिएंटेशन. जिस कंपनी में आपने जिस भी फील्ड में काम किया है वो प्रोसेस प्रेजेंट करने का कोशिश करो रिपोर्ट में, ना कि डेटा एनालिसिस में जाने का कोशिश करो. अभी प्राइमरी डेटा करके सर्वे करके होना डिफिकल्ट है. जस्ट ट्राई टू मेक अ प्रोसेस अप्रोप्रिएट. गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Okay. Yes, Sanat, बोलो. हेलो
सर हमें ना डेटा मिला था, मतलब 600-700 कॉल नंबर मिले थे, वो सारे मतलब सारे अटैच करने पड़ेंगे कुछ क्योंकि अटैच नहीं करना पड़ेगा, तुमको नंबर मिला है, नंबर मिलने के बाद तुमने क्या बात किया है उसका रिकॉर्ड है क्या तुम्हारे पास? एक्सेल शीट है क्या? सबको क्या क्या क्वेश्चन पूछे एक्सेल थे उस शीट। क्वेश्चन, एक मिनट सुनो हाँ मुझे। सर, क्वेश्चन। हाँ हाँ, तुम्हें देखो, तुमको किसी को बात करने के लिए बोला था तो सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए होंगे, तुमने वही क्वेश्चन पूछने हैं, उसी क्वेश्चन का आंसर लेना है। वो वाला एक्सेल शीट है क्या तुम्हारे पास? सर, मैं एक बताता हूँ कि कैसा उन्होंने एक बार डेमो दिया था बस हमें। तो डेमो के बाद हमें ना मतलब हमें बार बार चेंज करना पड़ता था क्वेश्चन की, जैसा उनका रिप्लाई आता था ना आई उस हिसाब से हमें अंडरस्टैंड बट क्वेश्चन स्टिल, फिर से चेंज आई करना पड़ता अंडरस्टैंड था। बट स्टिल देयर शुड बी तो सम कुछ ऐसा, स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क ऑफ क्वेश्चंस, स्ट्रक्चर्ड कॉल्स ही तो होते हैं। हम उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था, तो हम सिर्फ हम खुद से बात करते थे कि हमें तो हमारे तुम पास ऐसा तब ऐसा एक मिनट एक प्रोडक्ट मिनट है। एक मिनट एक मिनट, तो तो तुम एक, हमने सुनो यार, आई गॉट योर पॉइंट राइट, आई डोंट नीड दैट मच एक्सप्लेनेशन, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू क्यूरियसली लिसन टू मी, बिकॉज उसी में से तुमको सोल्यूशन मिलेगा। अब तुमने 100 लोगों को कॉल किया, अज्यूम करो 100 लोगों को कॉल करने के बाद 10 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो तुम्हें कॉमन पूछे सब लोगों को, तो लिस्ट आउट दोज क्वेश्चंस, और उस क्वेश्चंस के लिए लोगों ने क्या क्या आंसर दिए, और उस कॉमन क्वेश्चंस मतलब अब वो क्वेश्चन के ऑप्शंस क्या क्या होने चाहिए वो भी तुम्हें चाहिए। वो क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव है या ऑप्शनल है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसके बेसिस पे आप 10 क्वेश्चन निकालिए जो कॉमन थे, उस 10 क्वेश्चन को चार चार ऑप्शंस दे दिए, और उस चार ऑप्शंस में आप अपने एक्सपीरियंस से टिक मार्क करिए अभी एक्सेल शीट में। मतलब डेटा आप खुद कॉल कर, हिस्ट्री का मतलब आप अपने एक्सपीरियंस से डेटा शीट बनाइए, एक्सेल शीट। या चाहे तो इसमें चार मुझे पांच और आंसर कस्टमर्स मिल। को, या तो चाहे तो चार पांच कस्टमर्स को और कॉल करिए, और उसको चार पांच कस्टमर्स का जो रिस्पॉन्स आएंगे उन्हीं को रेप्लिकेट करो 20-25 के नंबर में, और उसका एनालिसिस करो। देर इज नो एनी अदर ऑप्शन। समझ रहे हो? ओके सर। और सर मतलब फिर भी नंबर कितने अटैच करने चाहिए, या वो जरूरत ही नहीं है? डोंट मेंशन नेम एंड नंबर्स, उसका कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हें 10,000 का भी डेटा शीट मिल सकता है, 10 लाख का भी मिल सकता है, डिजिटल में क्या दिक्कत है? फोन नंबर और नाम मिलने में क्या है? डेटा सेट बहुत अभी सारे वो अवेलेबल। सारा हमने हमने निकाला था, तो ऐसे नहीं। उससे क्या होगा? उससे वो सिर्फ तुम्हारा नंबर भी नंबर, हमने मतलब ऐसे। हाँ। तो उसकी प्रोसेस मेंशन करो, नंबर निकालने की प्रोसेस मेंशन करो, which process you have प्रोसेस कर followed सकते out, हैं। which tools you have used, which digital sources you have used, what have you हाँ, done, and सोर्सेस how यूज have you कर सकते got हैं। the numbers, and how many numbers you have got. Just mention that figure, not a list of ओके। numbers. उसमें तुझे 2-4 पेजेस 5 पेजेस का कंटेंट मिल जाएगा। समझ में आया? और उसके बाद उनसे क्या बात की उसका डिटेल लिखो, और उनसे बात करने के बाद क्या समझ में आया वो फाइंडिंग में लिखो। गेटिंग इट? हेलो तजिन, बोलिए। हाँ सर। सर जो इंटर्नशिप में थी वो मार्केट रिसर्च का था। हम्म। ओके। तो उसमें अभी हम लोग को मतलब रिपोर्ट्स पे स्टडी करना था, आर्टिकल्स लिखने थे, सैंपल्स क्रिएट करने थे, फाइनेंशियल एनालिसिस पे काम था। तो जो भी डेटा है वो हमारा पीसी में वहीं पे रहता था। तो इट वाजंट अलाउड वी फॉर अस टू टेक इट होम एनीथिंग एल्स। सो हाउ कैन आई पुट अ डेटा फ्रॉम माय कंपनी लाइक? You create 3 similar kind of dummy reports at your own now. उनके जैसे प्रॉब्लम होते थे वैसे ही प्रॉब्लम आप खुद अभी डमी प्रॉब्लम्स खुद को असाइन करो। आई मीन लाइक योर टाइटल वुड बी ओके। लाइक क्रिएटिंग अ फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑफ XYZ कंपनी, राइट, और XYZ इंडस्ट्री। ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, राइट। तुम्हारा टाइटल ऑब्जेक्टिव ओके। फिक्स है क्या? ओके। टाइटल फिक्स है क्या? हाँ हाँ हाँ। व्हाट इज योर टाइटल? मैं बोलूँ क्या? Okay. So my title is a study on market analysis of the reports on consumer goods, pharmacy, and various industries at Prudor Private Limited. हाँ ठीक है ना, ये टाइटल डिस्कस हुआ था शायद मेरे साथ पहले। हाँ जी, आपने ही सजेस्ट किया है। राइट। तो इसमें मैंने आपको उस टाइम भी बताया था, अगर आपके पास वो रिपोर्ट अभी नहीं है तो यू क्रिएट एटलीस्ट 3 रिपोर्ट्स सर। ऑफ दिस 3 इंडस्ट्रीज। हाँ। एक फार्मेसी का करो, एक ओके। हाँ, कंज्यूमर गुड्स का। तो सर कैसे मतलब जो हम लोग के रिपोर्ट्स होते थे ना, जो डेटा उसके अंदर था वो कॉन्फिडेंशियल है, बट उसका अभी जो टेम्पलेट्स। टेक अ डमी डेटा, टेक अ डमी डेटा, यस यूज गूगल सोर्सेस। सर, लिसन नो।
हम लोग को ना मतलब मेरे सर से मेरा जो मतलब हम लोग के जो हेड थे उनसे हम लोग ने मांगा था, तो उन्होंने एक रिपोर्ट हमको दी है सबको, सबके लिए एक, बट वो डमी टाइप है, उसके अंदर कुछ इतना रेलेवेंट डेटा नहीं है, बट इट्स अ फ्लो कि हम लोग कैसे सैंपल्स बनाते थे, चलेगा। कैसे उसी रिपोर्ट्स पे उसी काम करते थे। उसी डमी तो रिपोर्ट को बना के हाँ, अपने 3 इंडस्ट्री के 3 रिपोर्ट बनाइए, स्ट्रक्चर वही रखो, फ्लो वही रखो, अच्छा, डेटा डेटा डमी है तो भी चलेगा। हाँ हाँ, Try to take, चलेगा, and you can honestly mention in your summer internship that data has been taken at dummy data has been taken here due to the ओके, confidentiality of the company. कॉन्फिडेंशियल रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द कंपनी, यस, But ओके। outcome में एंड सर हाँ, सुनो, बोलो, outcome में you should be very concrete. Your outcome should be very concrete कि ये प्रोसेस से जाने के बाद ओके रिपोर्ट में ये फाइंड हुआ तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, कहाँ यूज होगा वो इन्फॉर्मेशन। ओके ओके ओके, हाँ ठीक है सर। तो सर तीनों इंडस्ट्री पे करना ऐसे नेसेसरी है एक पे, क्योंकि वो एक ही 80 स्लाइड्स का है रिपोर्ट। तो आप उसको कट शॉर्ट करिए, कम ज्यादा करिए, जहां जो जो रिक्वायर्ड है दिखाना है अच्छा, दिखो, राइट। बट ठीक है, आप तीनों का इम्पोर्टेंट से करिए, तीनों का ही करो, और या 3 लोग अलग अलग करिए। दैट इज हाउ यू हाँ कैन। वैसे करते हैं। कितने लोग थे ओके प्रोडोर में सर, आई डोंट नो, बट जस्ट प्ले विद मैं थी, मिथिलेश है, और एक है शायद से, तो तीन तीन। तो हम बट लोग आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। एक मिनट, आपने टाइटल में तीनों चीजें मेंशन की हुई है ना, हाँ सर, तो तीनों का समरी समरी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 10-10 स्लाइड ले लो, तीनों का 10-10 पेज तक का। ठीक है, कल ठीक है, इंट्रोडक्शन ठीक जैसे है सर, बताया था ओके, वैसे इंट्रोडक्शन बना दो, उसके बाद ये डालो, उसके बाद उसके बाद पूरा प्रोसेस डालो रिपोर्ट लिखने का, और उसके बाद 3 सैंपल रिपोर्ट डालो, ओके, और तीनों सैंपल रिपोर्ट के हाँ, बाद आप क्या फाइंड हुआ उसका फाइंडिंग्स लिख दो, हो गया आपका प्रोजेक्ट। रेफरेंसेस दे दो। ओके ओके सर, ठीक है, चलो। चलो चलो, नेक्स्ट क्विकली। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? आई नीड टू मूव टू द वर्ड फॉर्मेटिंग क्विकली। किसी के कुछ क्वेश्चन है अभी? आकाश ठोमरे, हैव यू डन एनीथिंग? हेलो, ये सब आने जाने में हेलो लगे सर। तो। हाँ, कुछ किया है आपने? हाँ सर। व्हाट इज द टाइटल? सर एक मिनट ना। कल कोई मुझे एक फाइनल रिपोर्ट दिखा रहा था। व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट पर्सन? इज ही हियर? He's No, not here, sir. I guess. सॉरी। वेंकटेश था ना, हाँ, I guess. वेंकटेश। वो है क्या यहाँ पे? नहीं सर, नहीं नहीं। सर, आज नहीं है। हेलो सर। बोलिए। हाँ सर, टाइटल है चैलेंजेस फेस्ड बाय P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म इन प्रमोशन। ओके। हाँ हाउ मच, which company you did this SIP? सर, fairsen.com। Okay, how much work you have done? Are you done with your introduction chapter, literature review chapter? हाँ यस सर। Do you have that document? Can you share it to me on WhatsApp? ओके सर। Send that document to me quickly. I will take that for editing. Meanwhile, all of you just try to understand we have a very short time, but short में भी हमें जितना हो सके अच्छा कुछ करना है, right? So I am trying to give my best for your SIP. अगर आप लोग थोड़ा सा उसको फोकस करते हो ना, तो you will get to know lot of things through these discussions. These discussions are not like a classroom sessions, or these are not, this is something like workshop kind of discussion we are having right now. So okay, yesterday we were talking about this particular thing, must remember things for your SIP, and I have shared something like this. Okay. तुमने शेयर करने के बाद बता दो मुझे आकाश, आपका शेयर होने के बाद। ठीक है सर। ओके, सो ये इंट्रोडक्शन का पार्ट मैंने आपको कल बताया था, राइट? नाउ लेट मी स्पीक टू यू अ बिट अबाउट लिटरेचर रिव्यू, राइट? लिटरेचर रिव्यू, आप अगर, आप सब लोगों को ये दिया है ना, आपके इसमें दिया है ना, क्या बोलते हैं उसको,
आपके व्हाट इज दैट डॉक्यूमेंट, प्रोजेक्ट क्या, कौन सा सर? प्रोजेक्ट का वो फ्रेमवर्क क्या है बुकलेट पूरा? बुकलेट 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 हाँ बुकलेट, यस। हाँ राइट, बुकलेट में ये दिया हुआ है लिटरेचर रिव्यू, राइट? यस सर। See, this is the most interesting part of your SIP. You know why? This will help you all to cover at least 10 pages, right? This will help you to cover at least 10 pages of your SIP. Now, in very short, let me tell you how to talk about literature review, right? Tajin, can you just tell me your title? What was your title? Yes sir. A little bit slowly, I would type that. Just tell me your title. जल्दी करो. हेलो. हाँ बोलिए. हाँ. स्टडी ऑन market analysis of the reports on consumer goods, pharma and various industries at Prudor Private Limited. एक मिनट, अभी ये काम करो, ये वेरियस इंडस्ट्रीज जो है ना वो निकाल दो आप अपने टाइटल से, राइट? ठीक है, कुछ और इंडस्ट्री डाल दीजिए वहां पे. प्रूडोर प्राइवेट लिमिटेड, यही है ना स्पेलिंग? PRUDOUR. हाँ बराबर है सर. Whatever, leave it. Doesn't matter. हाँ. So, certificate. I know. I have received it. Wait. Try to understand, guys. I am going to tell you how to do literature review, right? अभी आपके सामने ये टाइटल है. आपके सामने ये टाइटल है. You consider your own title, right? Now, what do you mean by literature? Quickly, anybody? What do you mean by literature? लिटरेचर किसे बोलते हैं? कभी सुना है? मैंने बीए इंग्लिश इन लिटरेचर किया है, या मैंने बहुत लिटरेचर पढ़ा है? व्हाट डू यू मीन बाय लिटरेचर? सुना. हाँ सर, डिटेल स्टडी. Okay. See, understand, literature means a published information about any specific topic or about any specific domain, right? A published information, a published data, a information or a data or a work or a research which has been already published by somebody. लिटरेचर का मतलब क्या होता है? जो हिस्टोरिकल डेटा रहता है, पहले ही पब्लिश हुआ है, किसी ने उस पर काम करके उसका इंफॉर्मेशन पब्लिश किया है, दुनिया के लिए अवेलेबल है, राइट? सो लिटरेचर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी, बुक्स, articles, newspapers, nowadays blogs, movies, songs, everything is a literature, right? Can be in the form of video, can be in the form of content, can be in the form of audio. So everything could be a literature. Anything which has been published, समझ में आ रहा है? Anything which has been published and available for public as a open information is called as a literature. सिंपल भाषा में समझो, लिटरेचर मतलब आज तक उस फील्ड के रिलेटेड जो भी स्टडीज पब्लिश हुई है. You are going to do literature review for this particular research topic. Means what? You are going to take a gist of current status of the knowledge, gist of current status of the knowledge about this particular topic. अभी तक आज के टाइम में इस टॉपिक के बारे में नॉलेज का क्या स्टेटस है? आई मीन लाइक लोगों को क्या क्या पता है, लोगों को क्या क्या पता नहीं है, लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, आज तक किसने क्या स्टडी करके रखा है, किसको क्या फाइंड आउट हुआ है. अब ऐसा नहीं कि आपको सभी टाइप का लिटरेचर रिव्यू करना है और पूरी दुनिया का नॉलेज ढूंढना है, ऐसा नहीं है. ट्राई टू फाइंड आउट मोस्ट कॉन्टेम्पररी नॉलेज. कॉन्टेम्पररी मीन्स मोस्ट लेटेस्ट नॉलेज, राइट? सो इसका अगर लिटरेचर रिव्यू करना है आपको, स्टडी ऑन मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट्स. अब इसमें की वर्ड क्या है? हाउ टू मेक मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट्स, राइट? इसमें की वर्ड क्या है? हाउ टू मेक मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट. अब आपको क्या ढूंढना है? मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट बनाने के बारे में आज तक लोगों ने क्या क्या सोचा है, कौन से रिसर्चर ने क्या क्या रिसर्च करके पब्लिश किया है, या किसी और ने कितने रिपोर्ट्स बनाए हैं, कौन कौन रिपोर्ट बनाता है, कौन कौन रिपोर्ट नहीं बनाता है. ये सब आपको इस टाइटल के बारे में लिटरेचर रिव्यू में ढूंढना पड़ेगा. सो कैसे करते हैं? स्टडी ऑन मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट्स, राइट? इसको 10 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगा. जैसे एंड होगा, क्विकली विद इन 1 मिनट वी विल
rejoin, right? Everybody of us will rejoin. So इसके बारे में आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना है, तो इसको क्या करो, गूगल में डालिए, टेक इट टू द गूगल, इसमें लिखो वर्किंग पेपर्स पब्लिश्ड फॉर दिस। क्या क्या समझ में आ रहा है? वर्किंग पेपर पब्लिश्ड फॉर क्रिएटिंग, इसको हटाओ, क्रिएटिंग मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट्स इन कंज्यूमर गुड्स। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? एवरीबडी हैज टू डू दिस फॉर योर ओन Yes. कीवर्ड्स, आपके खुद के टाइटल के लिए करना है आप सब लोगों को। अब इसको एंटर मारोगे ना तो आपको कम से कम लैक्स ऑफ रिजल्ट शुड बी देयर। इतने सब पेजेस हैं, बहुत सारे रिजल्ट आएंगे, कुछ करोड़ लाख में आएंगे, इतने सारे रिजल्ट हैं। आपको ये नहीं करना है, आपको इसमें से कोई भी 10 सोर्सेस जो है वो रिलेवेंट ढूंढने हैं और उसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन उनको जो फाइंड आउट हो उसको रिव्यू करके उसका समरी लिखना है। जैसे अब यहाँ देखो, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री ट्रेंड्स, राइट, रिपोर्ट बंडल 6 रिपोर्ट्स है यहाँ पे। तो किसने लिखा है? ये globalData.com ने 6 रिपोर्ट्स बना के रखे हैं। अब इस रिपोर्ट में से कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होगी जो आपको बता देगी कि कंज्यूमर इंडस्ट्री का स्टेटस क्या है, या कंज्यूमर इंडस्ट्री के रिपोर्ट बनाने के लिए क्या क्या मेथोडोलॉजी फॉलो की जाती है, वो सब इस रिपोर्ट में होगा। वो आपको रिव्यू करना है और उसका सोर्स लिखना है। जब आप रिव्यू लिखते हो, जो एक रिव्यू करके दिखाता हूं मैं आपको, नेक्स्ट पे चलते हैं। मार्केट रिसर्च रिपोर्ट एग्जांपल फॉर योर एनालिसिस, राइट। इसको ओपन करते हैं, इसको ओपन करते हैं। ओके, अब ये क्या बोलता है? मार्केट रिसर्च एनालिसिस आर द गो, मार्केट रिसर्च एनालिसिस आर द गो टू सॉल्यूशन। अब मैंने क्या बोला था आपको, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट, इसका क्या मतलब होता है, कैसे किया जाता है, इसकी प्रोसेस क्या होती है। तो अब यहाँ देखने के बाद आपको पता चल रहा है कि नहीं कि मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट क्या होता है। यहाँ पे आपको पता चल रहा है मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट क्या होता है। बाद में ऐसा हो सकता है कि हाँ ये देखो यहाँ पे लिखा है व्हाट इज मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट, व्हाट इज मार्केट रिसर्च रिपोर्ट, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं यहाँ पे होगा, फॉर एसेंशियल्स ऑफ मार्केट रिसर्च। आपको ये ऐसा का ऐसा नहीं लेना है, इसका क्रक्स लेना है, समरी लेना है। लेट सपोज आपने इतना ले लिया, राइट, ये ले लिया। चलो मैं अभी आपको कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूँ, आपको भी बताता हूँ कि कॉपी पेस्ट करोगे भी तो भी स्मार्टली कैसे कर सकते हो, राइट। हमेशा डेस्टिनेशन पेस्ट करना, ये मैं फॉर्मेटिंग के टाइम पे आपको सिखा देता हूँ। फिर यहाँ से उठाओगे हाउ टू प्रेजेंट योर रिजल्ट, 4 एसेंशियल्स ऑफ मार्केट रिसर्च। अब 4 एसेंशियल कौन से है? एक, इसमें 2 3 4 ऐसे नीचे आएंगे, राइट। तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ ले लोगे। एक तो आप कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको खुद लिखना है कि मार्केट रिसर्च रिपोर्ट क्या होता है। डेफिनेशन है तो ले सकते हो कॉपी पेस्ट करके, बट बाकी का कंटेंट खुद लिखना है। तो ये 2 3 पैरा आप इसके अंदर लिख सकते हो। जब आप ये 2 3 यहाँ पे लिखोगे, ये हो गया फर्स्ट प्रोसेस, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चार स्टेप आपने यहाँ से उठाए। जो भी 4 स्टेप्स हैं, अगर उसके सब स्टेप्स है तो आप उसके सब स्टेप्स भी ले लो। तो ये 4 चीजें आपने यहाँ डाली, तो ये रिपोर्ट हो गया। अब ये कहाँ से लिया था? यहाँ से लिया था, तो ये सोर्स आपको डालना है। ये सोर्स है इसका, ये सोर्स आपको यही इसी के नीचे डालना है। वो कैसे रिपोर्ट में जाएगा वो मैं आपको फॉर्मेटिंग के टाइम पे बता दूंगा। बट आप जब कंटेंट कलेक्ट कर रहे हो तब उसी टाइम उसका सोर्स उसके नीचे मेंशन किया करो, राइट। सो ये जाएगा सोर्स, राइट। ऐसे करके आप एक 10 सोर्सेस या 10 सोर्सेस को आप एनालिसिस करिए, आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर चैप्टर बन जाएगा। कम से कम 5 to 6 पेजेस बन जाएंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। डिफिकल्ट है थोड़ा, बट आप लोग अगर सोचोगे तो आ जाएगा। तो दिस वे नाउ यू विल गो टू, लेट्स सपोज टू अनदर थिंग, दिस। अभी हम मार्केट रिसर्च रिपोर्ट में यहाँ से हमने लिया था कुछ डेटा। नेक्स्ट, अभी इसने क्या किया है, इसने भी एक रिपोर्ट बना के रखी है, राइट। तो ये क्या रिपोर्ट है? कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में इसने रिपोर्ट बनाया है। क्या है? यूरोस्टैट OECD मेथोडोलॉजिकल मैनुअल परचेसिंग पावर, ये जो उसका जर्नल का नाम है, राइट। ये है उसका रिपोर्ट का नाम, कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसको एब्स्ट्रैक्ट में क्या मिला और इसके फाइंडिंग में जाके पढ़ने का क्या मिला, फिर बोलने का रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय
दिस पर्टिकुलर जर्नल, रिव्यू कैसे करोगे इसको, रिपोर्ट पब्लिश बाय दिस पर्टिकुलर जर्नल फ्रॉम दिस सोर्स, इट हैज बीन मेंशन दैट, फिर उसके फाइंडिंग के बारे में लिखो 4-5 पेज, 4-5 लाइन्स, 10 लाइन्स, वो एक पैराग्राफ बन जाएगा। तो ऐसे करते करते आपका 8-10 पेज का रिव्यू ऑफ लिटरेचर बन जाएगा। समझ गया? समझ गया? नहीं समझा? समझा सर। ये क्या है, मैंने क्या मांगा था, किसी ने मुझे क्या भेजा, ये पीपीटी भेजा है क्या तुमने? मैंने मांगा था वर्ड फाइल, सर्टिफिकेट ऑफ इंटर्नशिप भेजा है, थैंक यू। मुझे क्या करना है तुम्हारे सर्टिफिकेट का? ये कोई बीच में मैसेज कर रहा है, तुम्हारे मैसेज को रिप्लाई करूँ या मैं अभी टाइटल क्या चूज करना है वो पूछ रहे हैं साहब ज्यादा। फाइन, समझ में आया? लिटरेचर रिव्यू कैसे करोगे, कर पाओगे 10 पेज? अब Yes, कौन सा sir. सोर्स लेना है, कौन सा Yes, सोर्स sir. ज्यादा रिलेवेंट है, कौन सा सोर्स आपके टॉपिक पे ज्यादा क्लोज जाता है, और कौन सी इंफॉर्मेशन आपके टॉपिक के बारे में ही बात करती है, वो आपको चूज करना है, राइट? वो आपका चॉइस है, और नथिंग इज राइट और रॉन्ग इन दिस, कुछ भी गलत नहीं है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में एटलीस्ट कुछ भी गलत नहीं है, समथिंग इज समवेयर रिलेटेड टू ईच अदर, इजंट इट? देयर इज ऑलवेज सम कोरिलेशन अमंग टू थिंग्स इन द यूनिवर्स, कुछ ना कुछ तो कोरिलेशन होगा ही होगा। सो कौन से सोर्स पे क्या इंफॉर्मेशन लेनी है वो आपका चॉइस है, बट उसको आपके टॉपिक से कैसे लिंक कराना है ये आपकी जिम्मेदारी है, राइट? ये इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ से ले ली, सपोज ये इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ से ले लिया, कौन सा, ये वाला, बट हाउ दिस इंफॉर्मेशन इज यूजफुल टू माई टॉपिक, तो यहाँ मैं लिख दूंगा ना नीचे, आफ्टर रिव्यूइंग दिस पर्टिकुलर स्टडी, it has been understood that, हमेशा याद रखो लिटरेचर रिव्यू पूरा रिपोर्ट आपको पास्ट टेंस में लिखना है, राइट? इट हैज बीन, पूरा रिपोर्ट आपको पास्ट टेंस में लिखना है। अब यू आर रिपोर्टिंग द थिंग यू हैव डन, तो सब कुछ पास्ट टेंस में आएगा, कभी भी फर्स्ट पर्सन चीजें यूज नहीं होंगी रिपोर्ट में। आई हैव डन दैट, आई हैव डन दिस, ही हैड सजेस्टेड मी दैट, इट इज नॉट एट ऑल अलाउड। आई, मी, यू, वी, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन इज ऑल्सो नॉट अलाउड, मतलब ही, शी, दे हैव डन दिस, इस सब चीजें रिसर्च रिपोर्ट में अलाउड ही नहीं होती है। सब कुछ लिखना है थर्ड पर्सन में, पास्ट टेंस में, राइट? सो इट हैज बीन अंडरस्टूड दैट, फिर आगे लिखो आपको वो रिव्यू करके क्या समझ में आया। दिस वे यू विल बिल्ड योर नॉलेज रिलेटेड टू योर टॉपिक एज वेल, और एक कंटेंट भी मिल जाएगा पेपर में पूरा भरने के लिए आपको। यहाँ पे 10 पेज भरेगा, यहाँ पे 10-15 पेज भरेगा, 25 पेज यहाँ पे हो गया, 10 पेज का एनालिसिस हो गया, 35 पेजेस, 5 पेज का फाइंडिंग्स कंक्लूजन, 40 पेजेस, राइट? और बाकी आपको कुछ फिगर्स, टेबल्स, ये वो डालोगे तो वो 10-15 पेजेस हो जाएंगे। जितने डायग्राम ज्यादा डालोगे, जितना फिगर ज्यादा डालोगे, उस तरीके से आपके 50 पेजेस हो जाने चाहिए। एनी डाउट क्विकली before we move ahead for next session of formatting? फॉर्मेटिंग में मजा आएगा आप सब लोगों को। हाँ बोलिए सर। जैसे अभी आपने सोर्सिंग के बारे में बताया था कि सोर्सेस के लिए यहाँ पे इन्फॉर्म करना है, मेंशन करना है सोर्स कहाँ से है, तो सर यहाँ पे करने से अच्छा कि डायरेक्ट बिब्लियोग्राफी में डाला that तो I'll tell चलेगा you, that I'll tell you in time at the time of formatting के टाइम बताऊंगा मैं तुमको। ओके सर, थोड़ा होल्ड करो। इसी में फॉर्मेटिंग करके दिखाता हूँ, इसी डॉक्यूमेंट में। जस्ट रिजॉइन करो एक बार मीटिंग, मैं एंड कर देता हूँ इस मीटिंग को, फिर से रिजॉइन करो। ओके सर। स्टॉप शेयरिंग, एंड मीटिंग फॉर एवरीबॉडी एंड लेट अस ज्वाइन क्विकली। सब लोग आने चाहिए। कितने लोग हैं अभी? जितने भी 8-9 लोग।